Hello everyone, welcome to the Commerce Achiever platform and very happy Republic Day and Vasant Panchami to all of you. And today, before starting our today's session on UPSC Commerce Optional Initiative, in which I am trying to help you and give you a decent roadmap, which I promise if you follow, you definitely find yourself on a strong stage. So we together today on this auspicious day, 26th January 2023, we are celebrating a very two important days of our country's history. That is the Republic Day and the Vasant Panchami, the Republic Day, which we mark as the with the beginning of the Constitution of India and which came into an effect and India officially became a republic. So we have to give honor to the sacrifices which is made by our freedom fighters and to celebrate our unity as a nation. And when we talk about the Vasant Panchami, which we celebrate in the honor of our goddess Saraswati, the goddess of knowledge, music, and art, it is a day to start a new beginning, a new educations, and new strength. So, lots of wishes from my end on this Republic Day and Vasant Panchami, and may the day and ahead brings a lot of joy and prosperity in all of us life. So let's begin our today's session and may my wishes reaches to you and to each and everyone. Okay. So start with our today's session with OB. Okay. Yesterday I shared your target because we were a little bit occupied with the today's celebration and also I'll share the target very quickly. कल के दिन में मैंने आपको जो target issue किया था, I gave you a short glimpse as a shorts, but because we were little bit occupied for today's preparation, and today I'm going to analyze with the previous year. Today, when we start any chapter, like for example, we are going to start a conflict management. First, we will look into the picture, what kind of questions we have seen already in the past exams. So, पहले हम क्या करेंगे previous year paper में हमारे किस तरीके के question आए हैं, फिर उसको calling करेंगे हमारे chapter से, and then we'll detail discuss our today's topic on OB and then financial management. So, our today's target on financial management is a management of conflicts. Okay, so management of conflicts, let's I'm just opening it and I'm going to link you with the previous year question on the management of conflict. So पहला क्वेश्चन हमारा था कि डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सब्सटेंशियल एंड इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट और एग्जामिन रहीम्स क्राइटेरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. ये क्यों आया था? दैट वाज इन न्यूज इन 2011, है ना, इसलिए ये क्वेश्चन उस समय कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में आपका जो है आया था. उसके बाद आपका जौहरी विंडो पे क्वेश्चन आ चुका है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, और जौहरी विंडो के ऊपर आपका जो है क्वेश्चन आया हुआ है और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर. उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ऑलवेज प्रॉब्लमैटिक. हमें कहना कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो हमारे मन में फीलिंग आती है यानी प्रॉब्लम अराइज हो गया, बट कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ऑलवेज अ प्रॉब्लमैटिक बट इट पेव्स द वे ऑफ डेवलपमेंट. ये एक डेवलपमेंट का कारण भी बन सकता है. इलुसिडेट व्हाट आर द पॉसिबल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट. डेवलप अ सजेस्टिव फ्रेमवर्क टू मेक द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मोर रिस्पॉन्सिव एंड इफेक्टिव. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का था, लेकिन एक तो आपसे स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए बोला, फिर बोला इसके इम्प्लीकेशन भी बता दो, तो दो पार्ट किया हो गया. तीसरा पार्ट आपसे ये पूछा कि भाई एक फ्रेमवर्क सजेस्ट करो कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को हम कैसे मोर रिस्पॉन्सिव और इफेक्टिव बना सकते. तो एक ही क्वेश्चन में तीन सब क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हमारे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में. ठीक है, उसके बाद हमने देखा व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्फ इन द जौहरी विंडो, यानी जौहरी विंडो आपका सेकंड टाइम रेज्ड हुआ, एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशन डज ईच हैव विद द इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी जौहरी विंडो एंड इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन हमने देखा. उसके बाद एक और क्वेश्चन आया 10 मार्क्स का था आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रोल कॉन्फ्लिक्ट. रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, what are its causes, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एंड what are the method to overcome role conflict. तो कौन कौन से मैथड आप ऑप्ट करेंगे ताकि आप रोल कॉन्फ्लिक्ट को जो है फेस कर सके, उसको ओवरकम कर सके. ठीक है, उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन नंबर 2 भी 10 मार्क्स का था, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्टाइल ऑफ हैंडलिंग इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट. यानी इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमने देख लें. ठीक है, सो ये कॉन्फ्लिक्ट के हमारे पास्ट ईयर के 2011 एंड ऑनवर्ड्स एक सम अप मैंने एक पिक्चर आपके माइंड में बना दी कि इस तरीके के क्वेश्चन आए थे. ठीक है, सो हम देखते हैं हमारे आज के टॉपिक मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स के.
तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट से वो कैसे लिंक्ड हो रहा है, यानी उसकी मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन को कवर अप करना है। डिफिनीशंस के मैटर में कई बार स्टूडेंट बार बार ये पूछते हैं कि मैम क्या डिफिनीशंस को याद करें। तो डिफिनीशंस को आपको याद नहीं करना है, उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। और वो भी इसीलिए करवाती हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में कोई डिस्क्रिप्टिव सरप्राइज टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे आराम से टैकल कर सकें। और वो आप तभी कर पाएंगे जब आपने ऐसी प्रैक्टिस की हो, इन जो है वर्डिक्ट्स को रीड किया हो, उसे अंडरस्टैंड करने की घर पे प्रैक्टिस की हो। अगर आपके पास टाइम है, आपका टाइम अलॉट होता है, तो आप किसी एक भी डिफिनीशंस को याद करके अपने आंसर में यूज़ भी कर सकते हैं, बट रॉन्ग डिफिनीशंस को यूज़ नहीं करना। उसके बाद आपने पढ़ना है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। पहले तो कॉन्फ्लिक्ट समझना ज़रूरी है, तभी तो आप समझ पाओगे कि आप कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसे कर सकते हो। तो कॉन्फ्लिक्ट पहले समझेंगे, फिर समझेंगे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या होता है, कैसे जो है रेजोल्यूशन करना है। तो मैनेजमेंट इज डिफरेंट एंड रेजोल्यूशन इज डिफरेंट एंड दिस वर द क्वेश्चंस व्हिच इज आस्क्ड इन योर इंटरव्यू। कई बार ऐसा होता है कि कई जगहों पे आप पोस्टेड है, वहाँ पे झगड़े हो जाते हैं। तो आप कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसे करोगे और रेजोल्यूशन कैसे करोगे, जब आपको मीनिंग पता होगी तभी तो आप एक्ट करोगे ना, है ना। उसके बाद क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, फीचर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्लासिफिकेशन हमारा ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट का प्रोसेस क्या है, फिर डिफरेंट व्यू आपका जो है कॉन्फ्लिक्ट का। उसके बाद फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होती हैं, उनके बारे में काफ़ी डिटेल में कवर अप करना है आपको, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट ना स्कॉलर के इन बिटवीन वर्डिक्ट्स दिए हुए हैं इस बुक में, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, कोशिश करिएगा इसे थोड़ा माइंड में सेटल करने के लिए, ताकि आपका आंसर जो है वो आउटस्टैंडिंग हो सके। क्योंकि व्हेन यू राइट सम वर्डिक्ट्स ऑफ डिफरेंट स्कॉलर्स ऑल्सो, तो एग्जामिनर के सामने ये इंप्रेशन पड़ता है कि आप सिर्फ ले लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हो, यू नो समथिंग बियॉन्ड दैट, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट, हमने ऑलरेडी देखा था कि कॉन्फ्लिक्ट को केवल हमें सरदर्द नहीं समझना है, एज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट भी समझना है। तो ये आपका कवर अप आ जाएगा पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में। तो दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक, ठीक है। देन इंडिविजुअल लेवल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जिसमें हम कवर अप कर रहे हैं इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एंड आपके उसके अंदर भी जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं, गोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इंट्रासेंडर रोल कॉन्फ्लिक्ट, टाइप्स ऑफ 4 टाइप्स ऑफ रोल कॉन्फ्लिक्ट, तो ये भी आपके पास ही है। तो इसलिए मैंने बोला बुक में जो क्वेश्चंस कवर अप किए हैं ना 2011 एंड ऑनवर्ड्स, वो सारे टॉपिक अदर देन जो न्यूज आपके सिलेबस में जितने भी जो चीजें हैं वो सब बुक में कवर है, ठीक है। तो अब आपको कोलिंग कर रहे हो ना, देखो रोल कॉन्फ्लिक्ट पे आया, फिर आपके 4 टाइप्स ऑफ रोल कॉन्फ्लिक्ट, आप चलो देख लो, ये है ना 4 टाइप्स ऑफ रोल कॉन्फ्लिक्ट एंड देन उनका डिटेल डिस्कशन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये आपका इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट आया हुआ है, फिर उस पर डिटेल डिस्कशन दिया हुआ है। तो एवरीथिंग इज गिवन, आपको सिर्फ अच्छे से कवर अप करना है और मल्टीपल रिवीजन देना है। आपको बार बार मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, नोट्स मेकिंग पे अभी फोकस नहीं करें, आपने सिर्फ इस बुक को ही यूज़ करना है, हाईलाइट करना है अपनी स्ट्रेंथफुल एरिया को, अपने वीक एरियाज को अंडरलाइन करना है। कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंटर्स आपको अपने माइंड में सेटल करने हैं तो उसे आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, और मल्टीपल रिविजन देना है। उसके बाद आपका आता है ग्रुप लेवल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे हम इंट्रा और इंटर ग्रुप लेवल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट को कवर अप करते हैं। फिर हमने इंडिविजुअल लेवल कवर किया, फिर ग्रुप लेवल किया एंड देन हमारा नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन लेवल का जो कॉन्फ्लिक्ट है। उसके बाद कैसे आप मैनेज करेंगे कॉन्फ्लिक्ट को, कौन कौन से मोड होते हैं हमारे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइजिंग, विड्रॉइंग एंड ऑल सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में गिवन है, स्मूथिंग। फिर टेक्निक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, आप क्या क्या टेक्निक, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, तो टेक्निक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी आपको कवर अप करना है। तो आज का जो आपका टारगेट है मैनेजिंग दी कॉन्फ्लिक्ट, ओबी का आपका रहने वाला है। उसके बाद हमारे बहुत ही छोटे छोटे 3 चैप्टर्स बचेंगे, प्रोबेबली 1-2 दिन में हम अपना जो है ओबी और आपका एफएमबी हम वाइंड अप कर लेंगे। एंड आई बिलीव जो हमने ऑलरेडी 4 सब्जेक्ट्स कवर अप किए हैं, आप उसका साइमल्टेनियसली रिवीजन कर रहे हो। कोई गाइडेंस, कोई सपोर्ट चाहिए प्लीज़ आप ले लो, लेकिन बाय द एंड ऑफ द मार्च आप कैसे भी करके एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग, ब्रेन में अपने कंटेंट को, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग को कवर अप कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा जो टारगेट था, कल हमने फाइनेंसिंग डिसीजंस कर लिया था, ठीक है। अब हम कर रहे हैं आज डिजाइनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, और डिविडेंड डिसीजन। आज ये 2 टॉपिक लेंगे, इट्स बिकॉज कि बहुत ही छोटा टॉपिक है ना। 1 सेकेंड, ओके।
सो डिजाइनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, हर बार आपके इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन हर ऑल्टरनेटिव ईयर में तो आया ही है, ठीक है। सो लेवरेजेस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवरेजेस, उनके बारे में ना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फॉर्मूले को रट रहे होते हैं। अंडरस्टैंड कर लो, आई प्रॉमिस, नहीं तो फॉर्मूले रटते रह जाओगे, उनकी नोट्स बनाते रह जाओगे, एग्जाम हॉल में याद नहीं आएगा। अंडरस्टैंड कर लो, मीनिंग अटैच कर लो, कोई डाउट है उसे पूछ के क्लियर कर लो, है ना। और ताकि आपके पास क्या है, जीएस भी है, प्रीलिम्स भी है, न्यूज कवरेज भी, हैव अ लॉट ऑफ थिंग। तो कॉमर्स ऑप्शनल को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, वीकनेस नहीं, ठीक है। इन रोड मैप्स को इसलिए लेकर के आ रहा हूँ कि एटलीस्ट आई एम हेल्पिंग यू ओनली इन द ऑप्शनल, यू हैव टू कीप दैट ऑप्शनल इन योर सेफ जोन, ठीक है। तो डिफरेंट लेवरेजेस आपने कवर अप करना है, ट्रेडिंग एज एन इक्विटी एंड ऑल, कंबाइंड लेवरेज, एंड देन आपके न्यूमेरिकल्स गिवन है इस बुक में। आर दीज न्यूमेरिकल सफिशिएंट? यस, गुड सफिशिएंट। अगर आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो तो सफिशिएंट है, रट रहे हो तो ऑब्वियसली यू नीड टू प्रैक्टिस 100 ऑफ न्यूमेरिकल, और वो भी शायद कम पड़ जाए। और इस चैप्टर में आएगा आपका ईबीआईटी एंड ईपीएस का एनालिसिस, जो कि आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेटिव नेचर में ईबीआईटी एंड ईपीएस का एनालिसिस गिवन है, ठीक है। तो आपको वो भी कवर अप करना है। और आज का एक और टारगेट है हमारा, डिविडेंड डिसीजन एंड वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। तो भाई जो हमारी प्रथा चलती है कि हम किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे आपको पता होना चाहिए, तो यू हैव टू कवर द इंट्रोडक्शन पोर्शन और मीनिंग और डिफिनीशन साइड। उसके बाद टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज क्या हो सकती हैं, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, है ना, और इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी है, कोई फर्म्स या कंपनीज ऐसी हैं जो डिविडेंड ही नहीं पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड डिसीजन एंड वैल्यूएशन ऑफ द फर्म, जहाँ पे हमें इररेलेवेंस कॉन्सेप्ट और रिलेवेंस कॉन्सेप्ट को कवर अप करना है। डिफरेंट थ्योरीज है, रेसिडुअल अप्रोच, एमएम मॉडल, वॉल्टर अप्रोच एंड गॉर्डन मॉडल, ठीक है। सो इन अप्रोचेस को डिटेल में कवर अप करेंगे, रेसिडुअल को, एमएम मॉडल काफी डिटेल में गिवन है और रिपीटेटेड नेचर में आपके एग्जाम में पूछा गया है। वॉल्टर मॉडल है आपका, एंड देन आपका गॉर्डन मॉडल है। सो उसके बाद डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी है, ठीक है, जिसे आपको कवर अप करना है। और bird in hand, that was in the news and that was in repetitive nature in the news, so bird in the hand, dividend and uncertainty के बारे में भी आपको कवर अप करना है। उसके बाद लिंटर्स मॉडल है, और कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो किसी भी कंपनी को मदद करते हैं टू डिटरमाइन द डिविडेंड पॉलिसीज, सो यू हैव टू लुक इनटू दैट आल्सो, ठीक है। उसके बाद आपके थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चन आएंगे एफएम में, सो यू कैन मैनेज अकॉर्डिंगली। एक बार मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक सेकेंड आप दें तो हम आपको लिंक करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे डिविडेंड के चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, ताकि आपके माइंड में एक रोड मैप बन जाए कि आपको कैसे उन पिक्चर जो आइडियाज हैं उनको माइंड में रख के चलना है। तो एक जो लेवरेज है एंड देन आपका डिविडेंड है, ठीक है। सो 1 सेकेंड प्लीज। ओके, लेवरेज का आपका मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो आई ट्राई टू सॉल्व वन न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट ईयर, ताकि आपको उससे आइडिया मिल जाए, ठीक है। उसके बाद हमें रिलेशनशिप बोला कि आप कोलिंग करो बिटवीन द लेवरेज और प्रॉफिटेबिलिटी, कंपलसरी क्वेश्चन में आपका ये आया हुआ है। उसके बाद बोला कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज, तो अगेन आपका न्यूमेरिकल रेज्ड हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम अगेन जो देखते हैं न्यूमेरिकल, ऑलमोस्ट आपका मैंने कहा हर ऑल्टरनेटिव एग्जाम में आपका जो है न्यूमेरिकल तीनों लेवरेजेस को पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ इस टॉपिक को आप काफ़ी अच्छे से कर लो, फॉर्मुलेज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। उसके बाद पूछा गया है एक्सप्लेन नेट इनकम ऑपरेटिंग इनकम मॉडल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, अ फर्म कॉस्ट ऑफ इक्विटी एट जीरो लेवरेज इज 15%, व्हाट वुड बी द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट 40% लेवरेज अंडर एनओआई मॉडल। सो अगेन एक तरीके से आपका एनओआई मॉडल को कोलिंग कर दिया गया है विद द लेवरेज के कॉन्सेप्ट से। अब डिविडेंड की अगर हम बात करें कि डिविडेंड टॉपिक से हमारे कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बट लेट्स सी द टॉपिक ऑफ डिविडेंड, ठीक है। ओके, डिविडेंड से हमारा एक थ्योरेटिकल अगेन जो क्वेश्चन है कि आपको डिविडेंड मॉडल, डिविडेंड की कैलकुलेशन को पूछा है। अ कंपनी हैज अ 10 करोड़ विद शेयर्स एंड उनको डिविडेंड की क्या पॉलिसी, डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसे रिलेटेड आपको एक न्यूमेरिकल पूछा गया है एक एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद गॉर्डन मॉडल पे स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है कि हाउ गॉर्डन मॉडल एंड इम्प्रूवमेंट ओवर द डिविडेंड मॉडल्स, डिस्कस द लिमिटेशन, तो आपको लिमिटेशंस बतानी है। उसके बाद और देख लेते हैं,
उसके बाद एक्सप्लेन ब्रीफली द फैक्टर दैट डिटरमाइन द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ कंपनी। तो ये देखिए आपका बुक में ऑलरेडी कवर्ड है, हमें कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना है डिविडेंड पॉलिसी को डिसाइड करते वक्त। फिर मोदीग्लानी एंड मिलर अप्रोच फॉर कॉर्पोरेट डिविडेंड पॉलिसी, तो अप्रोच को स्ट्रेट अवे पूछा है, अगेन ये आपके बुक में डायरेक्टली गिवन है, इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करी हूँ जो बुक में गिवन है उसे छोड़ के नहीं जाएंगे। A firm should follow a policy of very high dividend payout. Do you agree? Why or why not? आपको क्या लगता है? इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँ। चलिए हम नेक्स्ट सेशन में ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जिन स्टूडेंट को इसका मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए यू कैन सबमिट योर आंसर। ठीक है, आप व्हाट्सएप यूज करते हो या टेलीग्राम, आप टीम को इसका आंसर सबमिट करो एंड वी विल डिस्कस दिस टॉपिक आइदर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। अ फर्म शुड फॉलो a policy of very high dividend payout. Do you agree? Why or why not? ठीक है, ये आपका एक डिविडेंड पॉलिसी पे देखिए हर चीज़ें आप ना बुक में नहीं पढ़ के जाते, सम थिंग्स रिक्वायर्ड योर क्रिएटिविटी ऑफ योर आंसर राइटिंग। क्लियर? उसके बाद अगेन गॉर्डन मॉडल पे क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन गॉर्डन शेयर वैल्यूएशन मॉडल एंड स्टेट इन विच केस डिविडेंड पॉलिसी इज इररिलेवेंट अंडर दिस गॉर्डन मॉडल। ठीक है, सो अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन था आपका गॉर्डन मॉडल के ऊपर। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं। ओके बस यही हमारे क्वेश्चंस थे थ्योरेटिकल अप्रोच के, जो डिविडेंड डिसीजन के एंड वैल्यूएशन ऑफ द फर्म के। सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन से आपको गाइडेंस मिली हो, एक रोड मैप मिला हो, और आपकी प्रिपरेशन को ये डेफिनेटली बूस्ट करे। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी। कोई क्वेरीज या कुछ डिस्कशन है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने कमेंट्स उनकी जो है सेटिंग्स में कुछ डिफिकल्टीज है, जो वो बोलते हैं कि कमेंट उन्होंने दिया बट वो हमें कमेंट्स नहीं मिलते, बिकॉज 99% मेरी कोशिश रहती है, इवन इट टेक सम टाइम, बट मैं हर एक कमेंट्स को रिप्लाई करती हूँ। सो प्लीज चेक द सेटिंग्स फ्रॉम योर एंड एंड डू शेयर योर वर्ड्स और क्वेरीज, आई विल डेफिनेटली आंसर विद टाइम टू टाइम। ठीक है, और जाने से पहले अगेन माई बेस्ट विशेज विथ यू ऑन दिस रिपब्लिक डे एंड वसंत पंचमी, and I always pray to Goddess Saraswati that it brings a lot of joy in your life and prosperity and blesses you and give you a right path and give me an insight so that I can share with you a right path. So stay connected, keep working hard. See you on the next day. Till then, take care. Bye bye and Jai Hind.